public speaking का event है, right? There are so many speakers within the audience, so why not to invite one of our best speakers here, Lipi Gedwani. Please give her a big round of applause to Lipi Gedwani. She is a postgraduate from Delhi School of Economics, having profound interest in fashion, interior, music and reading. Please give her a big round of applause. A proud mother of 2 daughters, right? She's a mother of 2 daughters, a successful homemaker and sudden motivational speaker, a deep learner of life skill who wants to spread happiness and peace through the words. Please give her a big round of applause. Lipi Gedwani. We are all here to inspire each other. We are all here to play the role on the stage, to distribute positivity, energy, vision, and above all, respect to each other. So, let's start with the attitude of gratitude. I'm thankful to God for making this event happen, and grateful to author Sherry, Karaji, and Ever Stocks for organizing this event. And thankful to all of you who have taken a prestigious time to attend this event. So let's begin with my speech. Begin? कहाँ से शुरू करूँ? कोई कहानी तो नहीं है जो कहूँ once upon a time or long time ago. जनाब ये जिंदगी का सफर है, एक जर्नी है जिसका कोई सिरा नहीं होता. तो बस इतना बता सकती हूँ, आज जो यहाँ ऑफिशियली मैं खुद को लॉन्च करना चाहती हूँ as a motivational, as a public speaker, there was a time when I was least motivated to speak. Yes, very true. When I was in school, I never ever answered a single question in my entire school life. और उस पर दुख की बात क्या थी जानते हैं? That I was a topper in all my classes. Yes, you heard it right. ये मेरे लिए दुख की बात थी that I topped since first till 12th. क्योंकि टीचर्स को रीजन मिल गया था मुझे इंसल्ट करने का. I remember an incident from my 6th class. जब एक न्यू टीचर आई and she asked, who was the topper of last year? I stood up like this. Then she asked me a question and I was like this. My legs were shivering and I couldn't answer. She again asked the question, but again I was like this. No answer. She insulted me. She scolded me by saying, how could a kid like you come first? You don't deserve to be a topper. And आप सोच सकते हैं, जो बच्चा पहले ही बोलने से इतना डरता हो और उसी क्लास में सब बच्चों के सामने इंसल्ट कर दी जाए, तो उस बच्चे की क्या फील होगी? उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां. And you know, that was the moment. Yes, that was the moment when I decided to change. To change nothing. आप लोगों को क्या लगा था? मैं कहूँगी to become a motivational speaker? जी नहीं जनाब, इस जिंदगी बहुत लात मारती है, हमें गिरा देती है. गिराने के पीछे उसका एक पर्पस होता है. वो चाहती है कि आप खड़े हो, उठो और अब की बार दौड़ो नहीं, चलो नहीं, दौड़ो, वाकई दौड़ो. पर हम क्या करते हैं? वहाँ गिरते हैं, रोना धोना शुरू करते हैं और इस अपने गम में हमें वो आवाज नहीं सुनाई देती जो कह रही होती है, उठो, फिर से उठो, अब की बार तुम्हारी बारी है. Because we feel self-defeated, dejected, depressed. हमारे इमोशंस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जिंदगी की आवाज को हम इग्नोर कर देते हैं. So same was the case with me. मैंने जिंदगी के इस पुश को इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गई. I did my graduation, I did my post-graduation and got married. Got married to a beautiful family. जहाँ सब लोग बहुत अच्छे थे. और आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि मेरे मुंह पर तो जिद थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी. और एक आदत और थी, to do my things with perfection. तो इंडिया में जो डॉटर इन लॉ ज़्यादा बहस ना करे और हर काम बढ़िया करे तो you prove to be a good daughter-in-law. So I proved to be a good daughter-in-law, good mother, as well good wife. Good wife to a loving and caring husband. But दिल में ना कुछ खालीपन सा था, एक वैक्यूम फील होता था. आई थिंक ये फीलिंग मेरी है या कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो इसको कॉमनली फील कर पाएंगे
कि लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए भी ना कई बार आपको लगता है यू आर मेंट फॉर मोर, यू कैन डू समथिंग मॉन्यूमेंटल, कुछ है जो कमी है। तो इसको कुछ शायराना अंदाज में मैं आपको बयां करके बताती हूँ। कुछ रिश्ते हैं, कुछ किरदार हैं। रिश्ते जैसे माँ, मामी, मासी, चाचा, ये हमें मिले हैं रिश्ते सबको। कुछ रिश्ते हैं, कुछ किरदार हैं। किरदार जैसे यहाँ कोई मैनेजर है, कोई सीईओ है, सब अच्छे की पोस्ट पर है। तो कुछ रिश्ते हैं, कुछ किरदार हैं जिनकी भूमिका निभानी है। क्या जीवन की इतनी सीमित कहानी है? इन रिश्तों ने, इन किरदारों ने दिए बहुत से नाम हैं, पर इन नामों में गुम वो जो एक नाम है उसे खोज नहीं पाती हूँ। खुद को जो नापती हूँ इतना छोटा पाती हूँ, आईने में देखूं तो खुद को नजर नहीं आती। सो ऐसा कुछ हाल था मेरे दिल का। मैं ना चाहती थी कि जब गर्दन ऊंची करूँ ना तब अपने नाम को यहाँ दूँ। और आप में से काफी लोगों की चाह रही होगी कि जब गर्दन ऊंची करें तो अपना नाम यहाँ देखें। और काफी लोग तो आज यहाँ देख भी रहे हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द बॉडीज जो आज अपना नाम यहाँ सुनेंगे। और काफियों के मैं होप करती हूँ कि जल्दी ये उम्मीद पूरी हो। तो ये उम्मीद मेरी भी थी, पर मैंने किया क्या इस चेंज के लिए? मैं लाइफ में इतना बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या मैंने कुछ किया? मैं आपको यहाँ पे एक लाइफ का एक सीक्रेट बताती हूँ। आज तो आप सब लोग बहुत स्पेशली रेडी होकर इस इवेंट के लिए आए हैं, वेरी नाइस। बट यूजुअली हम क्या करते हैं? वी वेक अप इन द मॉर्निंग फ्रॉम आवर बेड, then we go to our washroom, get fresh, have our breakfast, go to our workplace, meet same people, have same feelings, have same thoughts, come back to our home, watch our mobile, watch TV, spend family time, and then back to our bed. Next morning, क्या नया होता है? Again same routine. We wake up from the same bed with same thoughts, with same feeling, get ready with same thoughts, meeting same people again and again and again. We are following the same routine. But secretly, we all are expecting a beautiful change in our life, in some way or the other. Some want change in their bodies, from fat to thin. Some want change in their job. Some want promotion. Some want change even in their relationship. And some want change in their profits. कहीं ना कहीं हम सब कोई change expect कर रहे हैं अपनी लाइफ में. But the question is, how can your life change when yourself is not changing even a bit? आप रोज एक ही थॉट के साथ एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हो, but still you are expecting your life to change. So this is not possible. This is not going to happen with you. आपको इस टाइम लाइफ दो चॉइसेस देती है इस केस में, जो मैं आपको ऐसा नहीं समझाऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी जिससे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। ये कहानी एक राजा की है जो शिकार पे निकला था, पर उसे रास्ते में ना एक रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड के 2 छोटे बच्चे मिले जिसे वो अपने साथ ले आया। उसने अपने बाग के खूबसूरत पेड़ की टहनी पर उन दोनों बच्चों को बिठा दिया। वहीं पर उनको खाना, पानी, दाना सब मिलने लगा। पर कुछ दिन बाद राजा ने क्या देखा? एक बच्चा खूबसूरत सी उड़ान भरकर आकाश में झूम रहा है और दूसरा बच्चा उसी टहनी पर बैठा है। कोई बात। फिर राजा ने कुछ दिन बाद देखा एक बच्चा आकाश में उड़ रहा है और दूसरा उसी टहनी पर बैठा है। राजा को कुछ चिंता हुई। उन्होंने बर्ड ट्रेनर्स को बुलाया कि इसको उड़ने के लिए ट्रेन किया, बट सभी बर्ड ट्रेनर्स ने हाथ खड़े कर दिए। अब राजा ने अपने किंगडम में अनाउंसमेंट करा दी कि शायद कोई हो ऐसा जो इसे सिखा सके कि उड़ना कैसे हो। फिर किसान ने आके कहा मैं कोशिश कर सकता हूँ। सब बड़े हैरान थे कि जो बड़े बड़े बर्ड ट्रेनर्स नहीं कर सके वो ये किसान क्या करेगा। पर उसे दिया गया ये अपॉर्चुनिटी, वो गया और 5 मिनट बाद आके उसने राजा से कहा कि अब आप चलकर नज़ारा खुद ही देखिए। और अब की बार वाकई नज़ारा कुछ अलग था। जब राजा बाग में गए तो उन्होंने देखा दोनों पंछी पंख फैलाए आसमान में उड़ रहे थे। राजा ने पूछा जो इतने बड़े बड़े बर्ड ट्रेनर्स नहीं कर पाए, तुमने ऐसा क्या किया? वेरी सिंपल। उस किसान ने कहा मैंने इस कुल्हाड़ी से ना उसकी डाल ही काट दी जिस डाल पर वो बैठे। तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ हमें ना 2 ऑप्शन देती है। एक जो पहली बर्ड ने करी, खुद अपने पंख फैला के उड़ाना, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। So change your thought, change your attitude, change your doings with 100% determination. Your destiny is going to change for 100%. So self motivation. होते हैं काफी लोग सेल्फ मोटिवेटेड। सुधा मूर्ति जी अगर आप जानते हैं उनको, मुझे लगता है काफी लोग पहचानते हैं। शी इज अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है। और सेकंड
केस था जो दूसरी बॉय के साथ हुआ। तो वो क्या था, उसको मिला एक झटका, जिंदगी का झटका, एक पुश जो हमें जिंदगी देती है। एंड इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिजीज, अ ट्रॉमा, अ लॉस, अ फाइनेंशियल लॉस, इट कुड बी अ लॉस ऑफ योर ड्रीम एंड इट कुड बी अ लॉस ऑफ योर लव्ड वन। कैसा भी झटका हो सकता है। और उस झटके के बाद जब हम उठते हैं उससे बोलते हैं सक्सेस। और ये काफी सारी सक्सेस स्टोरीज के पीछे का सीक्रेट है। अगर आप लोगों ने सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हो तो आपने देखा होगा सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा एक कुछ आता है। आप सब जानते ही हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो आपको पता है उनकी लाइफ में कहाँ झटका था? क्या आप सबको लगता है वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे? कोई जानता है उनके बारे में? यस, बिल्कुल सही, वो एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे। बट जिंदगी ने उनका ये सपना तहस नहस कर दिया। His dream was shattered। पर अगर उस जिंदगी ने ये झटका ना दिया होता तो आज हमारे पास एक फेमस पायलट होता, मिसाइल मैन नहीं होता, इंडिया का फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं होते। सो कई बार जिंदगी का झटका ना बहुत जरूरी होता है हमें आगे ले जाने के लिए। एक पुश देती है जिंदगी हमें आगे निकलने के लिए। ऐसा ही पुश कुछ स्टीव जॉब्स की जिंदगी में भी आया। When he was dropped out from his college, जी हाँ, उनको अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा था because his parents could not afford the fees of that college। तो अगर वो कॉलेज नहीं छोड़ते तो एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय होते किसी कंपनी के। बट नो, he started his own company in a garage with his friend। और उस कंपनी को आप सब जानते हैं by the name of Apple। और आपको क्या लगता है ये झटका उन्होंने एक बार बर्दाश्त किया? जी नहीं, ये झटका उन्होंने 2 बार बर्दाश्त किया। When he was thrown out of his own company, Apple. Yes, you can imagine what a hard blow it could be to be thrown out of your own created company. But he was a master. He knew how to glow in the blow. So what he did? He started another company named Next, a computer designing company, which is again few years later purchased by Apple, and he is back in his old position. So जिंदगी के झटके को कैसे इस्तेमाल करना है ना, उसके बाद कैसे ताकत बटोर कर फिर से खड़ा होना है, फिर से दौड़ना है, फिर से उड़ना है, ये हमें सीखना है। क्योंकि एक बात कहूंगी, आसमां खुला था पहले भी, आसमां खुला था पहले भी, आसमां फैला था पहले भी, बस देर थी तो तेरे पंख फैलाने की, तेरे पंख फैला।